Okay, so Mr. Kamran, Yes, how are you doing today? I'm doing good. What about you, sir? I'm doing great, Alhamdulillah. So, how was your experience in the rain today? Good. Sometime little bit enjoy the moment. Just right. Sometimes we must just enjoy the moment and forget about worries because this moment Will comes never back comes after one again. year, especially in India or especially in Delhi. The rain comes after one year, so we must just enjoy whatever it is. Okay, let's discuss about the homework I gave Yes. you yesterday. Yeah. So this is The okay. This homework is was initiate three a small conversation in real life okay. Good. on friend Hmm. me. Hi, how's it going, bro? Hmm. Friend, I'm doing well. Me, how was your weekend? Friend, it's good. We traveled a lot and had lots of fun in Kashmir. Okay. Me, really? Friend, yes. And where did you spend the weekend? Hmm. Me, nothing special like you. Anyway, it was nice talking to you. I should get going now. Friend, see you soon. Me, see you later. Nice. So here you have used this. Yeah, I should get going now. Anyway, it was nice meeting to you. I should get going now. Hmm. Very good. You did a great job while using this one. I also using this one from here. Yeah. How was your weekend? First from here. Hmm. Good. Shopkeeper. Hmm. Hi, how's it going your shop? Shopkeeper, not great. And what about you? Me, I'm also good. That sounds not good. What's the problem? Shopkeeper, due to rainy season, customers are decreasing. Me, oh, don't worry. Keep patient. It's just 2 3 days. Shopkeeper, yeah, let's see. Me, anyway, I should get going now. Shopkeeper, see you later. Me, see you soon. Unknown Give me a person in minute. classroom. Give me a minute here. I will just mark it here. We will look into it later. Yeah. Go ahead. Okay. Talking to unknown person in classroom. Me, uh, how's it going, bro? How's it going? Unknown person. Pretty good. And what about you? Me, me too. Unknown person. Nice classroom, isn't it? Me, yes, it's beautiful. Where are you from? Unknown person. I am from London. And you? Me, I am from India. Unknown person. Oh, nice. I had heard in India there is so much corruption. Me, I agree with you. Unknown person. Anyway, it was nice talking to you. We should go. Me, we will meet again. Unknown person. See you later. Okay. हम्म, ठीक है। एक बार शुरू से देखते हैं। आपने ये क्वेश्चन पूछा फ्रेंड से कि हाउ वाज योर वीकेंड। इसका मतलब आप आपका बीती बात की बात कर रहे हैं, कैसा था। आ, आपके फ्रेंड ने जवाब दिया इट्स गुड। इट्स गुड का मतलब हुआ ये इट अच्छा है। वाज गुड. हाँ, यहाँ आएगा इट वाज गुड। It was good. It ठीक है, was good. इट वाज गुड। फिर उसके बाद आपने सही लिखा कि वी ट्रेवल्ड अलॉट, ये भी पास की बात आ गई कि ट्रैवल किया था। हैड लॉट ऑफ फन इन कश्मीर, ये भी सही है कि हैड, तो Hmm. बाकी सब सही है। ठीक है।
रियली यस एंड वेयर डिड यू स्पेंड द वीकेंड, फिर आप बाद में Nothing नथिंग special स्पेशल like you. लाइक यू। Anyway, it was nice talking to you. I should get going now. हम्म। सही है। हाँ ठीक है, इसमें बस नथिंग स्पेशल ही बोल देते तो भी सही था। नथिंग स्पेशल, कोई ऐसा अब कुछ दोस्त खास है तो नहीं। उससे तो बोल सकते हैं कि कुछ हम्म। खास नहीं, तुम्हारे तरह तो खास नहीं। अच्छा वो दोस्त बोलना से तो चाहिए। ऐसे फ्रेंड से ना बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है चलिए फ्रेंड से उसको तो ताना मार सकते हैं ना। हाँ समझ गया। ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है, इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट में अच्छा नेक्स्ट एक यहाँ पर गलती थी आपकी, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कौन सा? स्पेशल। जी आपने यहाँ पे स्पेशल बोला था, तो इसको स्पेशल। हाँ इसको ध्यान रखना है। स्पेशल। हम्म, ठीक है नेक्स्ट, हाँ ये लिख लीजिए। फिर शॉपकीपर से हाउ इज इट गोइंग, हाउस इट गोइंग योर शॉप। ये यहाँ पर गलती है। योर्स। गोइंग योर शॉप या गोइंग योर शॉप, ये सेंटेंस सही नहीं बनना यहाँ से अगर देखा जाए तो। हाय हाउज इट गोइंग यहाँ तक तो ठीक है, हाउज इट गोइंग इन योर शॉप बोलिएगा तो फिर इन सही रहेगा। कि आपकी शॉप में। इन योर शॉप। हम्म नॉट ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। हम्म, वो बोला, मैं बोला आई एम ऑल्सो गुड। ऑल्सो तो नहीं लगेगा क्योंकि उसका तो अच्छा था नहीं। हाँ आई एम गुड बस होगा। आई हम्म एम गुड। दैट साउंड्स नॉट गुड, व्हाट्स द प्रॉब्लम। हम्म, तो इसमें आप बोलेंगे कि दैट डजंट साउंड वेल। दैट डजंट दैट डजंट साउंड वेल, वेल। क्या अच्छा ऐसी बात है? व्हाट्स द दैट प्रॉब्लम। डजंट साउंड वेल, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या बात होगी? ठीक है। फिर बाकी के ड्यू टू रेनी सीजन कस्टमर्स आर डिक्रीजिंग, Oh, oh don't worry, keep keep patient. patient, it will, It's it's just it's two just three 2-3 days days. Yeah, yeah let's let's see, see. anyway I should get going now, see you, ठीक है। और ये जैसे कि मेरे मोहल्ले का जानने वाला दुकानदार है, उससे बात कर रहा वो मैं है समझ उस गया वे था। में। जी 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 ठीक है। अब ये अननोन पर्सन क्लासरूम में है, तो क्लासमेट वाला अननोन पर्सन वाला कंबाइन कर दिया। हाय हाउ इज इट गोइंग। अननोन पर्सन बोला प्रेटी गुड। तो फिर बोला एंड व्हाट अबाउट यू। मैं बोला मी टू। फिर अननोन पर्सन बोला नाइस क्लासरूम इजंट इट। मी yes यस yes beautiful, यस इट्स ब्यूटीफुल। वेयर आर यू फ्रॉम। वो बोला आई एम फ्रॉम लंदन एंड यू। मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर वो बोला ओह नाइस, आई हैड हर्ड इन इंडिया देयर इज सो मच करप्शन। फिर मैं बोला आई एग्री विथ यू। वो बोला एनीवे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, वी शुड गो। मी वी विल मीट अगेन। वो बोला अननोन पर्सन सी यू लेटर। ठीक है। अच्छा इसमें एक ये है आई हैड हर्ड, आई हैड आपने नहीं देखा कि ये दोनों पास्ट टेंस आ गए, हैड भी आई वाज हियर्ड। नहीं, आई हैव। आई हैव होगा। ये दोनों पास में आ गए ना, हेड भी पास में हर्ड भी पास में। आई हैव हर्ड, या तो फिर जैसे कि लिखते हैं आई, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है आई हैव हर्ड, है ना, तो इस तरह से आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड इन इंडिया देयर इज सो मच करप्शन, ठीक है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि जब बात कर रहे होते हैं तो इसी तरह से आई हैव बहुत कम लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हुए चले जाते हैं। और नाइस, आई हैव हर्ड इन इंडिया देयर इज सो मच करप्शन, और टोन ऑफ वॉइस तो आपने देख लिया, है ना। अच्छा आप एक बार यही मुझे थोड़ा सा वॉइस टोन के साथ भी एक बार बताएं बोलकर। हाय हाउ इज इट गोइंग। अच्छा मैंने एक चीज देखी है, आपका जो हाई होता है ना वो काफी डीप होता है। साउंड ही मेरा ऐसा है। हाय ऐसे बोले हाय। हाय जैसे कि ऐसा हो सकता है, हाय मतलब एक एक हाय फ्रेंडली वाला हाय, हाय है ना। हाय हाँ हाय
हाउ इज इट गोइंग, या तो फिर इसको ज्यादा अगर आप स्ट्रेस ना दें, हेलो, ऐसे ही सिंपल से बोलते हैं हाय हाउ इज इट गोइंग, हाय हाय को बस हल्का सा बोलते चले हाय हाउ इज इट गोइंग। हाय हाउ इज इट गोइंग, हाँ, हाय हाउ इज इट गोइंग। है ना, तो वो हाय पे इतना ज्यादा फोकस नहीं आएगा, तो वो शो नहीं होगा। चलिए शुरू करते अच्छा, हैं। हेलो से एक बार ट्राई करें। हेलो हाउ इज इट गोइंग, अच्छा, ये वाला हेलो हो गया। वही सामने वाला हेलो हाउ आर यू, हाँ, तो वो उसको इसको भी थोड़ा सा ऐसे ट्राई करें, हेलो। हेलो हाउ इज इट गोइंग। हाँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेटर था, हेलो। जैसे मान लिया मुस्कुरा के बोले हेलो, बोलिए थे, हेलो हाउ इज है इट ना। गोइंग। हाँ, थोड़ा सा बेटर है ना ये, हाय से तो बेटर है। तो या तो फिर आप ऐसे बोलिएगा, हाय को बोलते चलिएगा हाय हाउ इज इट गोइंग। हाय हाउ इज इट गोइंग। हाँ, तो ये ठीक है, उतना पता नहीं चला और हाय भी बोल दिया। या तो फिर हेलो थोड़ा सा इस तरह से। ओके, ठीक है, गो अहेड। हेलो हाउ इज इट गोइंग। हम्म फिर वो बोलेगा गुड, व्हाट अबाउट यू, ये थोड़ा इस तरह से ही बोलें जैसे आपने लिखा हुआ है। प्रेटी गुड, एंड व्हाट अबाउट यू। ये गुड गुड भी सही है, गुड गुड, ये भी सही है। क्योंकि इसलिए सही क्योंकि कन्वर्सेशन में इस तरह से बात होती है, हम्म, तो ऐसे बोल अच्छा सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा गुड गुड। अच्छा। हाँ, गुड गुड, व्हाट अबाउट यू। हम्म, फिर मैं बोला मी टू, मी टू ब्रो, हम्म अननोन पर्सन, नाइस क्लासरूम, इजंट, इजंट इट। तो हम्म वो बोलेगा यस, मैं बोलूँगा यस इट्स ब्यूटीफुल, वेयर आर यू फ्रॉम। एक बार इसको, ये वाली लाइन को एक बार ऐसे ठीक से बोले जैसे आप खुद ही बोल रहे इसको हैं। यस इट्स ब्यूटीफुल, वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे इतना, यहाँ पे रुकने की रुकना जरूरत नहीं है है, नहीं। हाँ, ये, यस इट्स ब्यूटीफुल। हाँ मतलब बोलना आराम से, जल्दी जल्दी नहीं बोलना। मैं कह रहा हूँ रुकना नहीं, जैसे आप बोल रहे थे यस फिर रुक के फिर बोला कि कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पर। यस इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, क्योंकि जैसे अगर लिखने में देखा जाए तो ठीक है, लिखने में ऐसे लिख सकते हैं, बट जब बोल रहे होते हैं तो यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर बस ऐसे नॉर्मली बोलते जाना है। या ब्यूटीफुल, मतलब या भी बोल सकते हैं, यस भी बोल सकते हैं, या या इट्स इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या यस इट्स ब्यूटीफुल, या इट्स ब्यूटीफुल, है ना। एंड वेयर आर यू फ्रॉम। हम्म वो फिर वो बोलेगा आई एम फ्रॉम लंदन, एंड यू। हम्म तो मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम इंडिया। हम्म वो बोलेगा ओह नाइस, आई हैव हर्ड इन इंडिया देयर इज सो मच करप्शन। तो मैं बोलूँगा आई एग्री विथ यू। वो हम्म बोलेगा एनीवे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, वी शुड गो। मैं बोलूँगा वी विल मीट सून, या फिर वी विल मीट अगेन, सी हम्म यू लेटर। वो बोलेगा हम्म। अच्छा, इस कन्वर्सेशन से थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बातचीत हुई, उसने बोला मैं लंदन से हूँ, आपने बोला इंडिया से हूँ, फिर उसने ये बात उठाई करप्शन कि इंडिया बोला, में बड़ा करप्शन होता है, आपने बोला हाँ बात तो सही है, फिर उसके बाद उसको इंटरेस्ट खत्म हो गया बात करने में, क्या हुआ, उसने बोला चलो खैर बाद में बात करते हैं, बाय। करप्टेड जगह की वजह से वो बोले। वही तो, उसने कहा कौन बात करे इंडियन से। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा ट्राई करें कि भाई देखो कुछ भी है, हम अपने में तो हम शेर ही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नेता गड़बड़ कर जाते हैं, बट इंडियंस तो हम। बोल सकते हैं आई एग्री विथ यू, बट यू शुड नॉट ब्लेम ऑल ओवर इंडियंस। हाँ, मतलब वो बात थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि या इट हैपेंस, इट्स ऑल पॉलिटिक्स, है ना। इसमें इंडिया की गलती नहीं है, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस की गलती है। इंडिया एज अ होल तो सोने की चिड़िया हुआ करता था, है ना। तो उसकी वजह से हमें ये कोशिश करनी है कि इंडिया की इमेज खराब ना हो। तो अगर कोई कुछ ऐसा बोले तो वो पॉलिटिशियंस में डाल दो या इट हैपेंस, दैट्स ऑल पॉलिटिक्स, दैट्स पॉलिटिक्स। है ना। वो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई कर रहे हैं। अब वो एक पूरी अलग बात है कि फिर लोग भी ऐसे ही लोगों को वोट दे रहे हैं फालतू, ये धर्म वर्म के चक्कर में, ये वो सब बहुत लंबी बात है, अलग बात है। बट इन शॉर्ट आप किसी को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्या ही करोगे, तो उसको बस यही बता दो ये सब पॉलिटिक्स है, मैं नहीं पढ़ता पॉलिटिक्स में, है ना। और इस तरह से कि भाई हाँ भाई आई एम स्टिल अ प्राउड इंडियन, इस तरह से कि हाँ भाई ठीक है पॉलिटिक्स है, पर इंडिया की कोई गलती नहीं, इंडिया तो अपनी जगह है, इस तरह से, है ना। ठीक है, बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज वैसे ही थोड़े से लेट हो गए हम, और फिर आपके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो मुझे भी 10-5 मिनट ब्रेक चाहिए होगा। ठीक है, ओके। सो टुडेज टॉपिक, टुडे इज द डे 9। The topic is talking about
टेंस, पास्ट, प्रेजेंट टेंस पढ़ा। पास्ट इवेंट्स या अब अभी फिलहाल सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस है, टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स हालांकि जो अभी आपने लिखा पीछे कन्वर्सेशन दिखाई मुझे, वो देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि आपका पास्ट काफ़ी हद तक अच्छा है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अगर हो सकता है करेक्शन ज़रूरी हो, बट बाकी बढ़िया है। ठीक है, तो हम करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वोकेबलरी से हम स्टार्ट कर देते हैं हमेशा की तरह। वोकेबलरी कुछ वर्ड्स लिख लीजिए आप, वीओ से। हाँ, वर्डिंग आपने क्या लिखा है? वर्ड्स लिखा है। अच्छा, वर्ड्स लिखा है, ठीक है, चलिए ठीक। वोकाबुलरी लिख लें। हाँ, लिख लीजिए कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। बुलरी होता है ना, जी। BULARY। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद वेंट, WENT। 8 ATE। ATE। played, studied, watched, worked, क्या? worked, वर्क। worked, about, अबाउट, about, only about, BOUGST। saw, सो, saw, SAW, saw। SAW। अगर मैं ये बोलता तो शॉक्ड बोलता ना, शॉक थोड़ी बोलता, तो मैंने सौ बोला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हो गया विजिटेड, विजिटेड। फिर हो गया ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। जिसमें सिंगल एल लगेगा। ठीक है, VELED। ठीक है, अब आप एक काम करिए, हालांकि वो आज के प्लान में नहीं था, लेकिन इन सब के सामने इन सब का प्रेजेंट टेंस लिख दीजिए एक बार। गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिंपल प्रेजेंट। गो। इट। लिखते चलिए, मैं बता दूंगा अगर कुछ गलत होगा। प्ले। स्टडी। वॉच। वर्क। गो। बाउट, नहीं बाउट तो वो है, इसका प्रेजेंट क्या हुआ? बाउट का मतलब क्या हुआ? नहीं मालूम। बाउट का मतलब होता है खरीदा था। खरीदा था। तो बाय का क्या हो, वो बोल ही दिया मैंने। तो खरीदा था, खरीदा है का, या तो फिर खरीदा। खरीदा का क्या होगा कि खरीदा। पर, परचेज। इसका इसके साथ वाला बताइए। नहीं पता, ये तो फर्स्ट टाइम शायद, आई थिंक। नहीं, आपने 1 लाख बार सुना होगा, मैं अभी बोलते ही आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने बचपन में सुनता आ रहा हूँ। बी से ही स्टार्ट होता है। बाय। ठीक है। सी। विजिट। ट्रैवल। ठीक है, चलिए बढ़िया है। मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का मतलब आपको पता है, बस ये है कि पास में इनकी बात मेरे बात करेंगे तो फिर इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके गुड। अब एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं थोड़े से। इधर ही लिख लें। हाँ, इधर ही लिख लीजिए, जगह खाली पड़ी है। आई ये वेंट। क्या था? पास्ट था। ये ये क्या? है ना। हाँ, अच्छा, ये तो हाँ, ये यहाँ प्रेजेंट के लिख लिए, लीजिए, यहाँ के लिए प्रेजेंट लिख लीजिए, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल हो गया, आई वेंट टू द मार्केट, शी वॉच्ड TV, शी वॉच टीवी। TV, we played cricket,
We played cricket. अब ऐसे ही इन सबका एक एक एग्जांपल लिखते चलिए कुछ ना कुछ। We eat food. हम खाना खाते हैं। लिखिए फिर बताऊंगा। हमें प्रेजेंट में लिखना था क्या? अरे we ate food. हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं। We ate food का मतलब ये होगा? खाते थे। We ate food. थोड़ा और सोचिए इसके बारे में, किसका क्या मतलब होगा। हम खाते हैं खाना। हम खाते थे खाना। कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सिंपल पास्ट है। हम खाए हैं खाना। हाँ, वी एट फूड, हमने खाना खाया था। हमने खाना खाया था। और कुछ भी लगा दिए, आई I वी studied दे, in evening. कुछ, हाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, दे वी आई कुछ भी। They studied in evening. ठीक है। इन थोड़ा दा लगा दिया करें इससे पहले। इन द इवनिंग। They worked hard. नाइस। मतलब भी बता दीजिए। वो बहुत मतलब हार्ड मतलब बोले तो मेहनती काम करते थे। वो बहुत मेहनत का काम करते थे वे लोग। आप कॉन्टिन्यूअस में बता रहे हैं। वे लोग बहुत मेहनत करते थे। कॉन्टिन्यूअस में क्यों बता रहे हो आप कि करते थे, खाते थे? इसी में तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा? दे वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत का काम किया था मेहनत से, इस तरह से मतलब। या तो फिर नॉर्मल करते हिंदी में नहीं बोला लगे, जाए, करते हाँ, नहीं लगेगा, किया था, किया लगेगा। है ना? क्योंकि अगर देखो इसका भी बता देता हूँ मैं, अगर आप ये बोलोगे करते थे तो उसमें क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दे वर्किंग वेरी हार्ड। वर्किंग तो अभी हो जाएगा। दे वर्क वेरी हार्ड। दे यूज्ड टू दे वर्क, यूज्ड टू, किया करते थे का ना, हाँ यूज्ड टू, है ना? तो उसमें यूज टू लग जाएगा। लेकिन ये सिंपल एक ही बात हो रही है कि दे वर्क हार्ड, मतलब उन्होंने काम किया था मेहनत से। एक एक वर्ड टू वर्ड देखा जाए तो अगर नॉर्मल हिंदी में हो जाएगा तो ऐसे बोल देंगे कि उन्होंने मेहनत से काम किया था। ये फ्रेज काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। जैसे कि मान ली कोई एग्ज़ाम था, है ना, किसी बच्चों ने अच्छे बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, है ना, बट कुछ वजह थी, मान ली पेपर लीक हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में एक टीचर दूसरे को बता रहा है कि दे वर्क वेरी हार्ड, कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी लेकिन बट एग्जाम हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। तो इस तरह से ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अच्छा फ्रेज लिखा आपने। ओके, नेक्स्ट। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, Yesterday ही I शी bought, दे, कुछ भी, ही शी दे और आई हो गया, या जो भी कुछ। she bought cat. ठीक है, आ लगा दीजिएगा। I saw you yesterday. ठीक है, आई सॉ यू यस्टरडे। नेक्स्ट हो गया। Hmm. I visited in Delhi yesterday. विजिटेड जब आ रहे हैं ना तो फिर इन नहीं आएगा, क्या आएगा? I visited Delhi yesterday. कुछ आएगा, इन नहीं आएगा। I visited at Delhi yesterday. मैं हिंट ही नहीं देना चाह रहा हूँ कि एक वर्ड बताते ही आपको याद आ जाएगा। छोटा सा ही वर्ड है, 2 वर्ड्स का वर्ड ही है। 2 words. I visited. या तो फिर चलो कुछ भी मत लगाओ, I visited Delhi yesterday. ये भी ठीक है। बट अगर लगाना ही है तो एक दूसरा वर्ड। Visited. टू आएगा। Oh. आई विजिटेड टू दिल्ली, आई विजिटेड टू कश्मीर। Hmm. बट अगर नहीं भी लगाया तो ठीक है। आई विजिटेड दिल्ली यस्टरडे में, मैंने कल दिल्ली विजिट किया था। ठीक।
we we are traveled together. आर के साथ ट्रेवल्ड कैसा आ सकता है? We were traveled together. वर के साथ भी कैसा आ सकता है? यही तो नहीं समझ में आता है। पास्ट में वेंट यूज, वेंट तो पास्ट के लिए हो गया। वेंट का वर मतलब तो हुआ गए थे, गए थे। ट्रेवल्ड का मतलब हुआ सफर किया था। दो अलग अलग बातें हैं। हमने सफर किया था साथ में, हमने सफर किया था साथ में। तो लिख दीजिए। देखिए, हाँ पहले ये लिख दीजिए, वी ट्रेवल टुगेदर। बस। वर और आर की जरूरत ही कहाँ है? ये बात निकल मतलब आ गया ना इसका सामने ही, वी ट्रेवल टुगेदर, हमने साथ में सफर किया था। ठीक है जी। अच्छा, वेंट का मतलब था आई वेंट टू, मैं मार्केट गया हुआ था। गया हुआ था नहीं, मैं मार्केट गया था। गया था। सिर्फ वेंट का स्पेसिफिक बताइए। गया था। गया था। गया था। और वेयर का? वर का? हाँ, वर का। वर का स्पेसिफिक क्या होगा? जैसे कि यू वेयर गो कुछ टू भी द। काम, वो उसके किसी वर्ब के साथ यूज होगा कि भाई कुछ भी काम कर रहे थे। लेट से हम बोल सकते हैं वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग। कंटिन्यूअस के साथ यूज होगा ये, कि पास्ट कंटिन्यूअस, वर ईटिंग। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बताइएगा इसको। अच्छा, कि वर का इस्तेमाल कहाँ करना है? वेंट का तो बता दिए कि जैसे घर से आया था, आई वेंट टू होम, घर गया था मैं। आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया था मैं। तो वेंट तो फिर अलग बात हो गई। वर का वर का देखिए ऐसा होता है, एक वर्ड होता है वॉज। was था। वॉज कहाँ यूज होता है? आई वॉज पास्ट के लिए, है ना? तो वॉज यूज होता है सिंगुलर में, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। अच्छा, और जब प्लूरल होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, 1 मिनट लिखवा दीजिए। यूज इन सिंगुलर, सिंगुलर, यूज्ड इन सिंगुलर, यूज्ड इन सिंगुलर। है ना? एग्जाम्पल, ही, शी, इट, इनके साथ वॉज यूज होता है। ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, इट वॉज ईटिंग। हो गया ना? तीनों का मतलब ये निकल के आ रहा है, वो खा रहा था, वो खा रही थी, और वो खा रहा था। वर का? वर का प्लूरल में होता है, यूज्ड इन प्लूरल। अब मुझे सेंटेंस आप ही बताइए, किस दे वर प्लेइंग। हाँ, क्या क्या होता है पहले ये लिख लीजिए, प्लूरल क्या क्या होता है? दे होता है, दे, वी, एक और होता है, दे, वी, वो प्लूरल नहीं होता। इट। नहीं नहीं, इट तो ऊपर यूज हो गया ऊपर ना। दे, वी, बोलिए, सही बोल रहे थे आप। आर, यू, यू, ये भी तो सिंगुलर ही है। ये प्लूरल भी तो हो सकता है। यू आर, तुम लोग, ये तो प्लूरल हो गया। ये प्लूरल कैसे हो गया कि जैसे कि ऐसे यूज हो सकता है कि यू भाई, ऑल आर प्लेइंग, तुम सब खेल रहे हो, ये तो हाँ प्लूरल हो गया। हाँ, तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है यू। लेकिन जब वर होता है तो यू फिर के साथ यू के वाज साथ अच्छा वर नहीं यूज लग होता रहा, है। यू हाँ? के साथ वाज अच्छा नहीं लग रहा, यू वाज वहाँ वो भी है कि अच्छा भी नहीं लग रहा, बट होता भी नहीं है। कि यू वर प्लेइंग, अब किसी एक इंसान से ही बोल सकते हो कि यू वर प्लेइंग, कि तुम खेल रहे थे वहां पर। और मान लो एक टीम है, तो यू ऑल वर प्लेइंग, प्लेइंग। या तो यू गाइज वर प्लेइंग। वेंट का बताइए किसके साथ यूज है? वेंट,
वेंट का मतलब हुआ कि गया था, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, यू वेंट, सबके साथ यूज होगा, सबके साथ यूज होगा, सबके साथ होगा यूज। यूज्ड बोथ। इट वेंट, ये सबके साथ यूज हो सकता है, क्योंकि इसका तो मतलब ही हुआ ना कि वही गया था। अब एक इंसान भी आ सकता है, 10 लोग भी आ सकते हैं, तो इसलिए वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि वेयर किसके साथ। मतलब, वर मतलब कर रहा था, किया था। हाँ, मतलब कोई भी काम किया था। ये हो गया गया था। हाँ, ये गया था, ये स्पेसिफिक सिर्फ गया था कि ये इस्तेमाल हो रहा है। आई, दे, शी, वी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस वजह से वर और वेंट एक साथ इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? वर और वेंट, क्योंकि वर जो है, ये वेंट जो है एक जाने का वर्ड है, जाने आने का। ये दूसरे स्पेसिफिक चीज के लिए हो गया, ये जाने आने के लिए हो गया, करने के लिए हो गया। हाँ, जैसे कि वर में कि भाई ये कोई भी। खुद एक जाने से रिलेटेड ये बोल रहा है, और हाँ, ये करने से रिलेटेड बोल रहा हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे वर है तो इसमें ऑलरेडी ये बता रहे हैं स्पेसिफिक कि वर का मतलब कि एक काम किया था। ठीक है, वेंट का मतलब हुआ गया था। तो अगर हिंदी में भी करके देखें तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे किया था, गया था। हाँ, दोनों को एक साथ नहीं कर इस वजह सकते। से इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। वेंट सिर्फ इस्तेमाल हो गया, जैसे कि वेंट पे हमने सेंटेंस भी यहाँ बनाया था कहीं, आई ये वेंट टू रहा, आई मार्केट, वेंट टू टू द द मार्केट। मार्केट। सिंपल बात हो गई कि मैं गया था, कहाँ गया था, मार्केट। ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़े, और भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ना, हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, और आप उनका मुझे ऐसे सिंपल से फास्ट एक का। एक एक लाइन में आंसर देना। ओके। ओके, सो टेल मी, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? नथिंग, आई वेंट टू द मार्केट। गुड। वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड? आई विजिटेड टू दिल्ली। ओके। व्हाट डिड यू डू ऑन दिस संडे? वी प्लेड क्रिकेट। ओके। डिड यू वॉच अ मूवी? यस, आई वॉच्ड। यस, आई वॉच्ड। फिर सोचिए। यस, आई वॉच टीवी। मेरा क्वेश्चन था डिड यू वॉच अ मूवी। यस, आई वॉच्ड मूवी। इसका आंसर बहुत सिंपल होगा। मैंने आपसे जैसे क्वेश्चन जो पूछा है उसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैंने मूवी का नाम ले दिया। ठीक है, तो अब आप जो भी जवाब दोगे वो उसी कॉन्टेक्स्ट में दोगे कि हाँ भाई आप मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी बोल रहे हो वो मूवी के बारे में ही बोल रहे हो। यस, नो, मे बी, कुछ भी बोल रहे हो मूवी तब के बारे सिर्फ में बोल यस रहे हो। बोल देना है। नहीं तो सिर्फ यस भी नहीं बोलना, आपने बोलना है जैसे मैंने पूछा डिड यू वॉच अ मूवी, आप सिंपली बोल देंगे यस आई डिड। यस, आई डिड। हो गया सिंपल। यस आई डिड भी बोल दिया और मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या है, ऑलरेडी मुझे पता है ना। तो इसलिए आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, यस आई वॉच द मूवी। सिंपल आई डिड बोल देना। हाँ, बस यस आई डिड। ठीक है, ओके। ये जो डिड है, हम्म। डिड किया था। हम्म। देख मतलब ये मतलब किसी, जैसे टीवी देखा था, यस आई डिड हो गया। हम्म। अगर देख रहा था तो उसको यस आई डू, तो डू डिड, ये भी सब बताइएगा हमको। हाँ, वो तो बताऊंगा। हाँ। देख रहा था का यस आई डू कैसे हो सकता है? देख मतलब मैं बोला था प्रेजेंट के हिसाब से बोलेंगे यस आई डू, पास्ट के हिसाब से बोलेंगे यस आई डिड। हम्म। ठीक है, फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे? आई विल। आई विल। डू, डिड, विल। डू, डिड, विल। मालूम है बट कहाँ यूज करना है यही समझ में नहीं हाँ, वो आता। तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा कब आ गए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों पे एक एक सेंटेंस बना लीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तीनों पे। डू यू वॉच मूवीज? यस आई डू। डिड यू, क्या था मेरा क्वेश्चन? हाँ, डिड यू वॉच अ मूवी? यस आई डिड। विल यू वॉच अ मूवी?
Yes, I will. ठीक है, सिंपल है। चलिए अब थोड़ी सी एक्टिविटी है, बोलने की बारी आ गई आपकी। देखते हैं हमारे पास इसमें कितना टाइम है। ये टाइम तो हमारे पास थोड़ा सा है, एक काम करते हैं, मेरा फोन कहाँ है। इसमें मैं लगाऊंगा टाइमर 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स तक? ओनली 5 मिनट्स जी, क्योंकि मैं बहुत लंबी बात पूछने वाला हूँ। मैं आपसे पूछूंगा, यू विल टॉक अबाउट यस्टरडेज रूटीन। अब कल का सुबह से शाम तक आप बताएंगे तो 5 मिनट तो निकल ही जाएंगे। अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना है कि वो 5 मिनट में हो जाए, क्योंकि आप बताना चाहो तो 1 मिनट में भी जल्दी से बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो 3 मिनट कर देता हूँ बस ठीक है, 3 मिनट बोलना है आपको। रेडी? इसी को यूज करते हुए बोलना है। नहीं, यूज आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा मेन मकसद ये है कल कि के बीते हुए कल के बारे में बात बीते हुए करना है। कल, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस थोड़ा आपका जैसे अगर क्लियर हो गया तो उससे रिलेटेड मेरा मकसद है कि मैं समझूं कि आपको कितना क्लियर हुआ। ओके, ठीक है, शैल वी स्टार्ट? 20 सेकंड। ओके, ठीक है, 20 सेकंड ले लीजिए आप। बाहर काम चल रहा है ना, तो बाहर टी इसकी आवाज़ आती रहती है। मैंने हालांकि गेट बंद कर दिया है, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है। ओके, हो गया टाइम। हो गया। ओके, शैल वी स्टार्ट? We are. I am going to. I am going to start my yesterday work. I am going to telling you about my yesterday routine. Okay. ओके, So I went. I was I was get up at 7 a.m. ओके, and I were brush my teeth. सॉरी, I were brush my teeth ओके, and I ate breakfast नाइस, and then go and then went to college. गुड, And at the evening we played cricket and during night we studied. you still have 2 minutes left. Okay, and we watched movie, Okay, and after that yesterday I saw you in the market. No. is And this after is that this real or are you just No, making up? this is not real. Yeah, because I rarely go to market. I don't really go to markets. Okay, yeah. And I also saw you in the market. Okay, Um, there there was a girl who bought a cat, okay, and she was crying very much. She was crying, mm-hmm. and I saw also there are too many laborers who worked hard, Okay, and and I and after having dinner mm-hmm. Nice. I went I went to sleep. Hmm? Okay, mm-hmm. And Only 20 seconds left. You can also tell about your dreams because you are already asleep. I never seen any dream. Never seen any dream. Wow, Rarely. that's nice. I see dreams almost daily. Okay. Okay, thank you very much. Okay, sure. Thanks. Good. Nice try.
इसमें से यूज किए हैं जो सामने था। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया था। जब आपने ये बोला था ना कि आई सॉ यू इन द मार्केट, तभी तो मैं समझ गया था आप इसमें से यूज कर रहे हो। ठीक है, देखिए आपने दिक्कत ये हुई कि आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ करी। उसके बाद जो ब्रश माई टीथ के बाद से जो बात आपने करी, उसमें बहुत सारी चीज़ों में मुझे कोई भी गलती नहीं मिली। कि आप कॉलेज गए, फिर आप जो है वहाँ पर इवनिंग में आए, फिर आपने प्ले करा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी, तो उसके लिए वेरी गुड। अब थोड़ी सी आपकी गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने जैसे कि शुरुआत में जब बोलने से पहले कहा था गोइंग टू स्टार्ट माई यस्टरडे, बोलना चाहिए आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय यस्टरडे रूटीन। वेरी गुड। गोइंग टू टेल अबाउट माई यस्टरडे रूटीन। रूटीन, ये सही है। क्योंकि आपने ये जो बोला था, हालांकि आपको भी पता लग गया था कि आप गलत बोल रहे हो, इसलिए आपको फिर आपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी किया, आपने सही भी करने की कोशिश करी। उसमें आपने बोला गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट, लेकिन अब मैं आपको फीडबैक दूं उससे पहले आपको खुद ही समझ में आ गया कि आपको क्या बोलना चाहिए था, तो उसके लिए ठीक है, इन गलतियों को हम हटा देते हैं। फिर आपने एक गलती करी, आई वॉज गेट अप एट 7 AM। आपने, मैं आई समझता हूँ कि वेक्ट आपने पास्ट का इस्तेमाल किया वॉज करके। आई वेक्ट अप 7 am। वेक्ट वेक्ड अप नहीं होगा, आई वर वेक्ट अप 7 am। ये जो है ना, इसका आई पास्ट टेंस यूज करिए, वर तो आई में यूज कर। इसका पास्ट टेंस यूज करिए गेट का। आई गॉट यस, और वॉज नहीं आई आएगा। आई गॉट अप 7 am। गॉट अप, 7 am। तो ये क्यों नहीं बोल रहे आप? आई गॉट अप एट 7 am। आई गॉट अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठा था। ठीक है, तो बस सिर्फ इस चीज का आप पास्ट टेंस यूज कर लेंगे तो बात पूरी पास की हो जाएगी, आपके वॉज वूज लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। फिर आपने एक बोला था आई वर ब्रश माई टीथ। किया था। नहीं, लेकिन अभी हमने जैसे वर के बारे में बात करा, आई नहीं यूज होगा, आई के साथ प्लूरल यूज के नहीं लिए होगा। यूज है। हाँ। हाँ, आई के साथ नहीं होगा ना यूज, तो आई वाज ब्रश माय टीथ। वो भी नहीं आएगा। क्यों? वही बात, जैसे यहाँ से आई मैंने वॉश कट करा है वैसे ये भी कट होगा। आई ब्रश्ड माय टीथ। यस, इसका पास्ट टेंस यूज कर दीजिए, ब्रश्ड। ब्रश्ड आई ब्रश्ड माई टीथ। अच्छा, ये इसके भी अभी भी थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। टीथ। हाँ, थोड़ा सा खींचा करिए इसको, आप टीथ। अभी भी टीथ बोल देते हैं। आई ब्रश्ड माई टीथ। आई ब्रश्ड माय टीथ। ठीक है। फिर वही प्रोनाउंसिएशन वाली बात, SHE। शी हाँ, आपने बोला सी वॉज क्राइंग, शी वाज क्राइंग। शी, शी वाज है क्राइंग। ना, ये SH वाला आप अभी भी प्रैक्टिस करें थोड़ा। शी वाज क्राइंग। हाँ शी ठीक वाज है। क्राइंग। फिर आपने एक बात बोली आई सॉ ऑल्सो, अब वो मैं समझता हूँ कि आप बोलते बोलते जल्दी जल्दी में आपने बड़ बोल दी होगी हड़बड़ाहट में, बट आई सॉ ऑल्सो आएगा या कुछ और होगा? मैं आई आल्सो आई सॉ यू इन द मार्केट। आई, आई सॉ यू इन द मार्केट। हाँ सॉ होगा ना, अब यहाँ पे शॉ बोल रहे हो। आई सॉ यू, हाँ। जैसे आपने बोला था आई सॉ यू इन द मार्केट, उसको ये वाला सेंटेंस तो सही था। हम्म। आपने जो ये एक बार होता था ना कि आपने एक लड़की को देखा था कैट खरीद रही थी, हम्म। तो वहां पर आपने आई सॉ ऑल्सो और कुछ करके बोल दिया था। नहीं, आपने वो बोला था कि आफ्टर दैट मैं बोला था एंड आफ्टर दैट आई हाँ, एम आपने उनका आई बोला था मजदूरों का कि दे वर वर्किंग हार्ड, इस तरह से दे कुछ, वर वर्किंग हार्ड। है ना। तो इसमें आई ऑल्सो सॉ होगा, आई आल्सो सॉ। आई सॉ ऑल्सो नहीं होगा। आई आल्सो लगेगा पहले। हाँ, आई ऑल्सो सॉ, मैंने और ये भी देखा। आई आल्सो सॉ। हम्म, ठीक है। और फिर इसका भी प्रोनाउंसिएशन की एक दिक्कत थी, SLEEP। स्लीप। स्लीप, आपने बोला स्लिप, स्लिप का मतलब फिसलना। सिर्फ एक इसको खींचा नहीं तो ये वर्ड ही चेंज हो गया। ठीक है ना। स्लीप। बाकी सब सही था। आफ्टर हैविंग डिनर वो ये बोला था मैं। आफ्टर हैविंग डिनर। वो सब कुछ सही था, उसमें कुछ भी गलती होती तो मैंने लिख लिया होता, वो सब कुछ सही था जो जो मैंने तो क्या लिखा है। बोलेंगे मैं सोने चला गया आफ्टर हैविंग डिनर। आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप। हाँ। है ना। और शायद आपने बोला भी यही था, इसीलिए यही मैंने बोला था इसका। इसीलिए मैंने लिखा नहीं, अगर आप और कुछ गड़बड़ बोलते तो मैं लिख लेता। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आप होमवर्क लिख लें।
Write 5 sentences about what you did last Sunday. 5 सेंटेंस से ज्यादा ही लिख के लाते हैं, हाँ बिल्कुल, जितना आपको सही लगे बिल्कुल लिखिए। लास्ट लेकिन संडे में मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो जाए। हाँ मतलब 10 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वही है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर 10 में भी गड़बड़ निकलेगी और अगर नहीं हुई तो फिर सब सही होंगे। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके। ठीक है, ऑल राइट।